ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਹਮਾਰੀ ਸਮਿਆ ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਅਨੇਕੰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਪਰਥਰ ਜੋਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਏਕੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਇਹੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਆਪ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨਾ। ਆਪ ਜਪ ਹੈ ਅਵਰ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹੰਤ, ਕਈ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ, ਗੁਣੀ ਜਨ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕਵੀ, ਕੁਛ ਸੇਵਾਦਾਰ ਔਰ ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਜੋ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਥਾ ਰਾਹੇ ਉਲਫਤ में, ਲੋਗ ਮਿਲਤੇ ਗਏ ਕਾਰਵਾ ਬਣਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਸਾ ਕਦੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਿਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣਾ। ਹੋਣ ਨਜ਼ੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ, ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸਨ। ਇਤਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਤਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਐਸੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਚਰਾਗੇ ਰਾਹ ਬਣेंगे ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਮੇਰੇ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਚਰਾਗੇ ਰਾਹ ਬਣेंगे ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਮੇਰੇ, अभी तो मैं गुमराह मालूम होता हूँ। कदी बनणगे मेरे नक्शे कदम, दुनिया वास्ते चरागे राह, रस्ते दे चिराग, पर अभी तो मैं गुमराह मालूम होता हूँ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਸੀ, ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਤੌਰ ਸਾਥੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ ਜੋ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੌਰਵਾन्वित महसूस करते सन।
ये असीं मस्कीन जी दे नाल चल रहे हाँ। हर एक दी ख्वाहिश होंदी सी भी मैं मस्कीन जी नाल चलां। मैं उन्हां विचों कुछ नाम दास साहब जी दे सन्मुख रखदा है। जय सिंह जी रागी होंदे सन, वो भी मस्कीन जी दे नाल चलदे सन। साधू सिंह जी देहरादून वाले, जिन्हां दे सपुत्र कुलदीप सिंह हुण कीर्तन कर रहे ने, वो बड़ा सोहना कीर्तन करया करदे सन। दाम तो ना दे सकूं पेटा मंजूर करो, ये कविता उन्हां दी बड़ी प्रचलित हुई सी उस जमाने दे विच। ये भी मस्कीन जी दे नाल चलदे सन। फिर सरबजीत सिंह जी रंगीला दुर्ग वाले, जो अज पंथ दे विच बहुत वड्डा जिन्हां दा नाम चलदा है। भाई कंवरपाल सिंह जी देहरादून वाले, मेरी उन्हां नाल गल होई, कहंदे 1987 तो मैं मस्कीन जी दे नाल चलिया 2004 तक, यानी उन्हां दे अंतिम समय तक। हुण भी उस समागम ते अलवर जरूर पहुँचते हैं और शास्त्री संगीत दे माहिर हैं बहुत। मस्कीन जी नूं शास्त्री संगीत बहुत अच्छा लगता सी, बहुत प्रभावित होंदे सन मस्कीन साहब जी, क्योंकि आप मस्कीन जी कई बारी वाजा लैके बैठते सन और कीर्तन करते सन। कुछ राग भी उन्होंने याद सन, उन्होंने सीखे सन राग भी, पर अपनी मस्ती दे विच कीर्तन करते सन। मस्कीन साहब जी दे नाल भाई साहब भाई धर्म सिंह जी जख्मी वो भी नाल चलते सन। उन्होंने तो बाद फिर उन्होंने सपुत्र, उन्होंने तो बाद फिर उन्होंने सपुत्र, वो भी नाल चलते रहे ने मस्कीन साहब जी दे। भाई साहब भाई इंदर सिंह जी गुजरांवालिए पुराने साथी ने मस्कीन जी दे, जो उन्होंने नाल चलते सन। भाई गोपाल सिंह जी, प्रोफेसर दर्शन सिंह जी, जिन्हां दा नाम पंथ दे विच बड़े माण नाल लिया जांदा सी, ये भी मस्कीन जी दे साथियों विचों हन। 84 दे विच जिथे मस्कीन जी दे उत्ते कई परेशानियां आईयां, प्रोफेसर दर्शन सिंह जी दे उत्ते भी बहुत सारियां परेशानियां आईयां सन। इन्हां नूं कई बारी भेस बदल बदल के एक थां तो दूजे थां ते जाना पैंदा सी, पर ये भी मस्कीन जी दे बहुत अच्छे साथी सन। भाई साहब भाई वीर सिंह जी स्याहपोश, जेड़े मस्कीन जी दे बचपन दे साथी सन। जद मस्कीन जी बतौर कथावाचक विचरना शुरू होए ना, उस दौरान समागमां दे विच मस्कीन जी दे मित्र बने और मस्कीन जी दा जो आनंद कारज होया, ये आनंद कारज भी स्याहपोश जी ने आप ही करवाया सी। प्रोफेसर करतार सिंह जी कानपुर वाले, दास ने उन्होंने भी फोन करके पूछया सी भी तुसी कितने सालों तो मस्कीन जी दे नाल हो। उन्होंने दस्या भी तकरीबन मैं 34 साल तक मस्कीन जी नाल रहा। मैं जदों इंडिया विच आउंदे सन ना, तो फिर उन्हां दे नाल विचरदे सन। प्रोफेसर करतार सिंह कानपुर वाले 34 साल नाल रहे ने वो। फिर भाई साहब भाई हरबंस सिंह जी सूरज, भाई जोगिंदर सिंह जी जोगी, दोनों भरा हन सके। ये भी मस्कीन जी दे बहुत पुराने साथी हैं। मस्कीन जी जद इंग्लैंड जाते सन तो फिर ये नाल उन्हां दे विचरदे सन। इंडिया विच ही बहुत विचरे ने, बाद विच फिर इंग्लैंड भी सैट हो गए, फिर उत्थे भी मस्कीन जी दे नाल जाते रहे ने समागमां ते। इसी तरह ही होर भी बहुत सारे रागी जत्थियां दा जिक्र है। मस्कीन जी नाल कुछ बीबियां दे जत्थे भी चलते सन। मस्कीन जी दे नाल बच्चियां दी तरह उन्होंने प्यार करना मस्कीन साहब जी ने, जिस विच बीबी लखमिंदर कौर जी, इन्हां दा जत्था, हरविंदर कौर जी इन्हां दा जत्था, फिर सुखविंदर कौर जी इन्हां दा जत्था, फिर दलजीत कौर जी नूर दिल्ली वाले,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਮਾਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਹਨ। ਇਤਨੇ ਜੱਥੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੱਲਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਅਲਵਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਨੇ ਰੁਬਾਈ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਸਨ, ਕੋਈ 80-84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਮੂ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਔਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਇਧਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਸਿਰਨੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਮੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕੌਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਸੀ ਆਤਮਾ ਸਨ ਇਹ। ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਬੁਲੰਦ ਪਾਇਆ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਨ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸਨ, ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਰਸ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਫੌਜ ਵੀ ਸਨ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 14-15 ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀਰਾ, ਜੋ ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟि ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਔਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਖਣ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਰਵ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ UK ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੂਲ ਨਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਕੁਛ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣ, ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕਵੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਮਸਕੀਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਸਤ ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰ ਦੀਨੇ,
तैसा फल सिख को एक शब्द सिखाएगा। किसी नूं एक शब्द सिखा देना। भाई गुरदास जी कहते ने इतना वड्डा पुण्य है कि जिवें 7 मंदिर सोने दे बना देने ते एक शब्द किसी नूं सुना देण सिखा देना। भाई साहब कहते ने इतना वड्डा फल है शब्द सिखाण दा। ते मस्कीन जी दे नाल ते बहुत सारे विद्यार्थी चलिया करते सन। इन्हां सारे रागी जथियां नूं विद्यार्थियों नूं नाल चलण वालियां नूं इन्हां दी रिहाइश दा प्रबंध करना, लंगर दा प्रबंध करना, इन्हां दी आण जाण दियां टिकटां दे प्रबंध करने, फिर इन्हां नूं समां भी वंड के देना, फिर भेटा भी देनी, हर पक्षों ख्याल रखा जाता सी। मस्कीन साहब जी इतने कामयाब एक उच्च कोटि दे कमांडर सन, जथेदार सन मस्कीन जी। विद्यार्थियों के रूप में इन्हां दे नाल बहुत सारे साथी चलते रहे हैं, जिन्हां विच सब तो प्रथम विच नाम आंदा है ज्ञानी अनूप सिंह जी का। ये तो सक्के भरावां दी तरह सन, बस जूं मिले हैं जमुना नगर दे विच फिर नाल ही रहे ने। वो कुछ समय बाद फिर इंग्लैंड भी शिफ्ट हो गए, पर अक्सर नाल रिया करते सन ज्ञानी अनूप सिंह जी, ज्ञानी हरिंदर सिंह जी, अविनाशी सिंह दिल्ली वाले, ज्ञानी जसपाल सिंह जी लुधियाने वाले, जो हुण भी नाल चलते हैं समागम ते पहुँचते हैं अलवर दे विच। फिर ज्ञानी अजीत सिंह जी आजिज, ज्ञानी महेंद्र सिंह जी खादम इस वक्त कनाडा विच ने, बड़े अच्छे प्रचारक ने। वो भी गुरमीत सिंह जोश, ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी आज़ाद, ज्ञानी इकबाल सिंह जी मीराकोट और ज्ञानी रंजीत सिंह जी गौहर, ज्ञानी गुरविंदर सिंह जी कोमल और ज्ञानी बलवंत सिंह जी हमदम, ज्ञानी तरलोक सिंह जी यूके लुधियाने विच रहिंदे ने, और ज्ञानी जसविंदर सिंह जी दर्दी, ज्ञानी दलीप सिंह जी दर्दी दे सुपुत्र, जो अज पंथ दे विच इन्हां दा नाम चलदा है, बड़ी सोहनी कथा करते हैं। ज्ञानी अंग्रेज सिंह जी जो इस वक्त सीसगंज साहब दे हेड ग्रंथी ने, ज्ञानी ज्ञानी अंग्रेज सिंह सीसगंज साहब दे हेड ग्रंथी ने, बड़ी सोहनी कथा करते हैं। भावें ये नाल नहीं चले, पर इन्हां ने आप दस्या सी कि आगरे दे विच इन्हां ने विद्या हासिल की। मस्कीन साहब जी उत्थे आए और बाबा निरंजन सिंह जी ने इन्हां नूं कह के ते मस्कीन जी दा शागिर्द बनाया सी। मस्कीन साहब जी ने फिर इन्हां वास्ते अरदास की सी और बड़े अच्छे प्रचारक हैं। इन्हां दे विच सब तो लास्ट दे विच नाम आउंदा है दास दा, ज्ञानी मनमोहन सिंह निमाणा। भावें मैं मस्कीन जी दे नाल नहीं रहा हाँ, पर दास नूं भी उन्हां दा विद्यार्थी होण दा माण प्राप्त है। इतने क नाम दास को लाए ने, होर भी कई बहुत सारे होर भी ने जिहड़े मस्कीन साहब जी दे नाल चलिया करते सन। बहुत सारे रागी प्रचारक नाल चलते ने, कवि चलते हैं, सेवादार चलते ने, कुछ संगत दे विचों कई साथी भी ऐसे बन गए सन जिहड़े लगातार नाल चलिया करते सन। हुण मस्कीन जी जिथे एक अच्छे कथावाचक सन, उत्थे मस्कीन जी एक चलदी फिरदी संस्था लैके चलते सन, नाल चलदी फिरदी। वड्डियां वड्डियां टकसालां विच जिहड़े काम नहीं सन हो सकते, वो मस्कीन साहब जी चलदियां फिरदियां ही विद्यार्थियों दे नाल कर लैंदे सन। चलदियां फिरदियां ही
इन्हां सारे विद्यार्थियों का मस्कीन साहब जी बहुत ख्याल रखते सन। उन्हां दे रिहाइश का प्रबंध करना, लंगर का प्रबंध, उन्होंने स्टेज के उत्ते समा देना, उन्होंने भेटा भी देनी ताकि उन्हों का परिवार का खर्चा पानी भी चलता रहे, किसी चीज़ की कमी ना आवे, सारिਆਂ ਨੂੰ वंड के समा भी देना है। मस्कीन साहब जी ऐसे एक कामयाब जथेदार सन जिन्हों ने बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे उन्हों दे कोल रह के उन्हों की संगत करके बहुत सारे कामयाब होए। कथा दे दौरान मस्कीन जी का पढ़ाउण का ये तरीका हुंदा सी कि जब मस्कीन साहब जी कथा करते सन तो ये विद्यार्थी, क्योंकि मैनू मीरांकोट साहब जी ने दसिया वे, ज्ञानी इकबाल सिंह जी मीरांकोट जी ने, कहते जब मस्कीन साहब जी कथा करते सन तो असी सामने पैन ते कापी लैके बैठ जाते सां। मस्कीन जी कथा करते सन, असी नोट करी जाते सां। नोट करना, जिहड़ी गल नहीं समझ आई है वो फिर मस्कीन जी कोलों कमरे भी जाके जदों समा मिलता सी ना, फिर उन्हां कोल बैठ के सारे जने पुछ लैंदे सां और मस्कीन जी फिर समझा के पूरी तसल्ली करा देंदे सन। फिर किस तरीके नाल मजमून नूं बनाना है, किस तरह विच प्रमाण जोड़ने ने, किहड़े-किहड़े प्रमाण दिते जा सकते हैं, बोलण दा फ्लो किस तरह का होना चाहिए, कित्थे विश्राम लाना चाहिए है, साखी नूं किवें पेश करना है जो एक दृश्य बन जाए, अखां दे सामने एक फिल्म जी चल जाए। इस सारियां गल्लां मस्कीन साहब जी सिखाया करते सन अपने नाल रहन वाले विद्यार्थियों नूं। फिर जो कुछ उन्होंने इकट्ठा किया वे, पढ़िया वे, या जो पॉइंट नोट किए हैं, मस्कीन जी अपनी कथा के दौरान इन्हों पहले समा भी देंदे सन बोलण वास्ते। अपने समय तो पहले समा दे देना या अपने समय तो बाद भी समा दे देना। कई बारी ऐसा भी हुंदा सी कि समा नहीं सी आउंदा, थोड़ा हुंदा सी समा, तो अपना समा कट के ते अपने विद्यार्थियों नूं दे देंदे सन विचों, बई इन्हां नूं जरूर, क्योंकि सिर्फ पढ़न दे नाल कुछ नहीं होंदा, स्टेज ते बोलण दा जिथों तक अभ्यास ना होवे उथों तक कामयाब नहीं हो सकता है बंदा। स्टेज ते बोलना ही ना आवे तो फिर की करेगा। तो मस्कीन साहब जी संगत दे विच उन्हां नूं समा भी देंदे सन। और एक बहुत वड्डी खूबी सी मस्कीन जी दे अंदर कि चाहे कोई बिल्कुल नवा ही प्रचारक क्यों ना होवे या कोई नाल चलदा होया है, मस्कीन जी सारिਆਂ ਨੂੰ बैठ के ते सुनिया करते सन, सब नूं बैठ के। अजकल की तरह नहीं भी वड्डियां वड्डियां स्टेज ते गल्लां करनियां, बड़े बड़े वड्डे उपदेश लोगों नूं देने ते आप समय तो 5 मिनट पहले आना, फतेह बुलांदियां ही सीधा निकल जाना बाहर। ऐसा नहीं सन करते। 2-2 3-3 घंटे बैठ के ते कीर्तन ते कथा सुनते सन। अपने विद्यार्थियों नूं सुनना, उन्हां दे फिर बोलण दे विच कोई कमी रह जानी, फिर उसनूं कमरे दे विच पूरा समझाया करते सन। कई बारी किसी विद्यार्थी दे मुख तो कुछ गलत शब्द भी निकल जाते सन, तो फिर मस्कीन जी उन्हां दा बचाव भी करते सन। प्रबंधकां नूं कहना भी नहीं, अजे सिखदे पे ने, सिख सिख के एक दिन कामयाब होणगे, ठीक है गलती हो गई है, कोई गल नहीं है। फिर उसका सुधार भी करांदे सन मस्कीन जी। अपनी कथा के दौरान फिर मस्कीन साहब जी भावें कोई नवा ही विद्यार्थी क्यों ना होवे, अजे पूरा बोलना भी भावें नहीं आया है, पर फिर भी मस्कीन जी स्टेज के उत्ते 2 शब्द उस प्रचारक वास्ते बोल के और उदा
हौसला अफजाइल करते सन, ਉਹਦਾ हौसला ਵਧਾਉਂਦੇ सन, ताकि ये किधरे नर्वस ना हो जावे, किधरे अपने आप नू कमज़ोर ना महसूस करे। मस्कीन जी हौसला ਵਧਾਉਂਦੇ सन। बाबा बलवंत सिंह जी निर्मले जो मस्कीन जी दे उस्ताद सन, एक दिन कोई कविता लिख के 4 पंक्तियां ते बाबा बलवंत सिंह जी को लियाया। मस्कीन जी भी कोल बैठे हुए सन। बाबा बलवंत सिंह जी ने कविता पढ़ी और बड़ी उसकी सिफत की, बड़ी तारीफ की उसकी, बई तू कमाल कर दिता है, बड़ियां सोहणियां तू पंक्तियां लिखियां हन, बहुत कमाल की है। जदों पुरुष चला गया ना, बड़ा खुश होया, वो बाबा बलवंत सिंह जी ने मेरी तारीफ की है। वो जब चला गया तो मस्कीन जी ने आख्या भी बाबा जी ये कविता तक की लिखी है, इन्हें 4 अखर इधरों उधरों जोड़ तोड़ करके ते इकट्ठे कर लिया है, तो कुछ भी नहीं इहदे विच, बोलां दे विच कोई वजन नहीं है इन्हां दे विच, ते तुसी इतनी तारीफ कर दी है उसकी। बाबा बलवंत सिंह जी कहते ने तू मैनू कंजूस समझना, मैं कंजूस नहीं हाँ। की होया जे अज उहदे कोलों चंगी कविता नहीं बनी, जे मैं उसनू कुछ माड़े शब्द बोल देंदा, हो सकदा सी उहदा हिरदा टुट जांदा, वो कविता लिखनी छोड़ देंदा। अज नहीं लिखी गई, मेरे 4 शब्द बोलण नाल मेरा कोई नुकसान नहीं होया है, पर उसनू ताकत जरूर मिली है। अगली वारी हो सकता है वधिया लिख के लियाएगा। नाल बाबा बलवंत सिंह जी कह भी देंदे सन भी पुरखा थोड़ी होर मेहनत कर, तो इस तो भी ज़्यादा चंगा कर सकना मैं, तो ताकत मिलती सी ना। ये गुण मस्कीन जी ने उत्थों सीखिया सी कि वाकई साढ़े 2 बोल किसी का हौसला बढ़ा सकते हैं, किसी डिगदे होए नूं खड़ा कर सकते हैं, ताकत मिल जाती है। मैनू एक गल का अफसोस है, मैं जब मस्कीन साहब जी की कथा शुरू की सी ना, तो मैं सोचा सी भी शायद मस्कीन जी के जोड़े साथी ने, रागी ने, प्रचारक ने, कवि ने और उन्होंने प्यार करन वाले ने या उन्होंने परिवारक मैंबर हैं, मैं सोचा सी मेरा बहुत हौसला वधाणगे, कोई चंगे शब्द कहणगे, पर मैनू अफसोस इस गल का भी किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिता, किसी दे कोई 2 शब्द आए ही नहीं ने। सब तो ज़्यादा अगर खुशी हुई तो वीर तलविंदर सिंह जी यूके इंग्लैंड वालियां नूं और ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी आजाद साहब नूं। एक मेरे मित्र ने कोटा दे विच मेरे तो बहुत वड्डे ने, वो ज्ञानी गुरनाम सिंह जी अंबालवी, वो बड़े खुश होए ने। वो कहंदे ने तू बहुत वड्डा काम कर दिता वे, एक ब्रह्म ज्ञानी की जीवन गाथा संगत तक पहुँचाना बड़ा वड्डा काम तू कर दिता वे। ये उन्हां दे बोल ने। या सरदार मनजीत सिंह जी चावला जो फरीदाबाद वाले ने, उन्होंने मेरा हौसला जरूर वधाया वे। बाकी किसी दे कोई कमेंट नहीं आए। होर संगतां ने बहुत पसंद किया, उन्होंने मेरे को फ़ोन भी आए, उन्होंने लाइव रोज़ाना सुनते भी पे ने, बहुत सारे डेली सुनते हैं, कमेंट भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। पर पता नहीं क्यों मैं समझदा भी ये कंजूसी है, बहुत वड्डी कंजूसी है। खैर सतगुर ने ये जर्रा नवाजी दास नूं बख्शिश की कि मस्कीन साहब जी जैसी महान आत्मा का जीवन दास ने संगतां तक रखा वे। सतगुर मेहर करन। बहुत सारे विद्यार्थियों के रूप दे विच मस्कीन साहब जी दे नाल चलिया करते सन, बहुत सारे, और मस्कीन जी सारियां दी सिफतो सलाह करते सन ताकि इन्हां दा हौसला वधदा रहे।
इन्हां विच्चों बहुत सारे कामयाब होए ने, बहुत सारे की लगभग सारे कामयाब होए जिहड़े अज देशां विदेशां दे विच कथा विचारां करके ते संगतां दी सेवा कर रहे हैं ते अपने उस्ताद दा ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ जी मस्कीन साहब जी का नाम रोशन कर रहे हैं। बड़े सोहने ढंग दे नाल कथा विचारां कर रहे हैं। कई बड़ियां बड़ियां वड्डियां पदवियां ते भी पहुँचे हैं बहुत सारे। कई विदेशों दे विच बतौर ग्रंथी कथावाचक सेवा निभा रहे ने, विदेशों भी सैट हो गए ने। बहुत सारे इंडिया दे विच इतिहासक अस्थानां दे उत्ते सेवा निभा रहे हैं। जैसे ज्ञानी अंग्रेज सिंह जी सीसगंज साहब दे हैड ग्रंथी ने। वो सब तो वड्डी पदवी ते जेड़े पहुँचे ने ज्ञानी रणजीत सिंह जी गौहर। वो इस वक्त सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह गौहर जथेदार श्री पटना साहब उत्थों की सेवा कर रहे हैं। वो कामयाब होए ने बड़े। 10वें पातशाह जी के अस्थान ते अज सेवा निभा रहे हैं। दास ने 2 पंक्तियां भी लिखियां सन जदों इन्हों सेवा मिली सी ना, क्योंकि ये एक माण की गल सी भी इतने वड्डे अस्थान की सेवा किसी नूं मिल जानी कोई सौखा कम नहीं है। दास ने 2 पंक्तियां उन्होंने उस वक्त भेंट कीतियां सन। मस्कीन दे वेड़े विच मोती तां बहुत सन, पर गोहर वर्गा नहीं कोई गोहर हो सकिया। गोहर का मतलब भी मोती आउंदा वे। मस्कीन जी दे वेड़े विच मोती तां बहुत सन, पर गोहर वर्गा नहीं कोई गोहर हो सकिया। आए गए कितने रिजक दी खातिर, सेवा करके न कोई प्रवान हो सकिया। मस्कीन साहब जी की बहुत सेवा की है गौर साहब जी ने। तकरीबन कोई 19 साल तक नाल रहे ने। छोटे होंदियां ही नाल आ गए सन और 19 साल लगातार नाल चलते रहे। स्टेज की सेवा भी करते रहे। मस्कीन साहब जी की कथा दे विच कई बारी तुसी जकारियां की आवाज़ सुनते हो ना, उन्हां विच बहुत सारिया आवाज़ां गौर साहब दियां ही ने। मस्कीन जी कई बारी जिक्र भी करते सन, मेरे बहुत अजीज गौहर। कामयाब होए ने। बड़ियां वड्डियां वड्डियां पदवियां तक भी बहुत सारे पहुँचे ने। पर कुछ एक दा जिक्र करदियां होया मस्कीन साहब जी, हालांकि मस्कीन साहब जी ने जो शब्द लिखे हैं बई अद्धे दे करीब विद्यार्थी ऐसे निकले ने जिन्हां ने अकिरत कणा वाला काम किया है। अकिरत कण। पर 3 जणियां दा वो विशेष तौर पर जिक्र करते हैं, पर नाम किसी का भी नहीं लिया ते ना ही मैं नाम लेना है, मैनू पता भी नहीं है। 3 जणियां दा विशेष करके जिक्र करते हैं भी जिन्होंने मैं तीर चलाना सिखाया उन्होंने निशाना मस्कीन नूं ही बनाया। जिन्होंने तीर चलाना सिखाया, जिन्होंने मस्कीन साहब जी ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, निशाना उन्होंने मस्कीन साहब जी नूं ही बनाया है। मस्कीन जी फिर प्रमाण देंदे ने कि शिव जी का एक सेवक सी जिसका नाम सी भस्मासुर। भस्मासुर इस शिव जी की सेवा करता सी। रोज़ मुर्दे की भस्म लैके आउणी, क्योंकि शिव जी सिंगार करते सन मुर्दियां की भस्म दे नाल। इन्हें शिव जी कोलों वर लै लिया भी तुसी मैनू वर दिओ, मैं जिहदे उत्ते हथ रखां वो भस्म हो जाए और उहदी भस्म लिया के मैं तुहानूं दे दियां। शिव जी ने इस नूं वर दे दिता, पर अंदरों इसकी नीयत पार्वती के उपर सी। इन्हें शिव जी के उत्ते हथ रखण की कोशिश की, शिव जी नूं ही भस्म करन की कोशिश की है। मस्कीन जी कहते ने जब मैं अपने नाल इस तरह होंदा या वेख्या ना तो मैं हैरान हो गया फिर भी जिन्होंने बच्चियां की तरह पाल के वड्डा कीता है। बच्चियां की तरह उन्होंने मजमून लिख के देने,
गुरपुरब ते किहड़ा मजमून बोलना है, किस तरह बोलना है, चिट्ठियां लिख के उन्होंने गुरपुरब ते प्रबंधकों कोल भेजना, बेनती करनी अपने वालों, टिकटां देनियां उन्होंने, किराए दे पैसे देने अपनी जेब विचों, विदेशों दे विच नाल लैके जाना, वीज़ा लवा के देना, टिकटां देनियां विदेशों दे विच आण जाण दियां। होर भी कोई मुसीबत पै जाए इत्थों तक कि कपड़े तक भी बना बना के देने नाल। कपड़े नहीं सन आउंदे उन्हां कोल, उन्होंने कपड़े भी देने। पर जदों 2 कदम चलन जोगे होए ना, तो उन्होंने पहला निशाना ही मस्कीन जी नूं बनाया। फिर मस्कीन जी नूं शेख सादी साहब ने एक हिकायत लिखी है। कहते ने कि एक बंदा दरिया के किनारे ते खलोता आया सी, अगे चिक्कड़ बड़ा सी। पिछों एक बंदा आया ते उसनूं धक्का दिता ते वो चिक्कड़ दे विच डिग पिया। वो डिगण वाला धक्का देण वाले नूं पुछदा है भी पुरखा दस ते सही भी मैं तेरे नाल भलाई कदों कीती है, मैं तेरा भला कदों कीता है, दस ते सही ना, तू मैनू धक्का दिता है। उन्हां दियां पंक्तियां हन कि नेकी कुन बच्चा अंदाख, नेकी कुन बच्चा अंदाख, जिसनों असी कहने नेकी कर दरिया में डाल। बई किसे नाल तुसी अगर भला कीता है ना, तो फिर उहदे बदले दे विच तुसी भले दी उम्मीद ना करो, जो भलाई कीती है उहनूं दरिया विच सुट दिओ, पाओ, भुल जाओ उसनूं। मस्कीन जी कहंदे ने जद मैं अपने नाल इस तरह होंदा है देखिया ना, तो मैं बड़ा हैरान होया। जिन्हां नूं चलना सिखाया उन्होंने कदम कदम दे उत्ते मस्कीन जी दे रस्तियां दे विच ऐसे कंडे विछाए कि हमेशा वास्ते मस्कीन जी दे कदम रुक जान। ऐसे उन्होंने माहौल खड़ा कर दिता। ऐसे उन्होंने भयंकर इल्ज़ाम लाए मस्कीन जी दे उत्ते, इतनियां रुकावटां खड़ियां कीतियां। पर जिदे सिर दे उत्ते वाहिगुरू दा हत्थ होवे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, सदा अंग संगे अभंगम विभूते, जिदा विश्वास श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे उत्ते होवे, उहदा कोई वाल भी विंगा नहीं कर सकता है। विच करता पुरख खलोआ, वाल ना विंगा होवा। बड़ियां उन्होंने रुकावटां खड़ियां करन दी कोशिश की, पर निरंकार ने मस्कीन जी नूं हत्थ दे के बचाया। पर जिन्हां ने रुकावटां खड़ियां कीतियां सन, संगतां नूं जद उन्हां दी असलीयत दा पता लगा तो उन्होंने उन्हां दा आना जाना ही बंद कर दिता। ये अपने उस्ताद दे ही सक्के नहीं होए, तो बाकी किस दे सक्कियां होना इन्होंने। पर ऐसा होया जरूर, उन्होंने कोशिश बड़ी की है। थां थां ते स्टेजां दे उत्ते सरेआम मस्कीन जी दे खिलाफ बोलते सन, सरेआम। ऐसे अकिरत कण जिन्हां ने लैके ते बदले दे विच शुकराना तक की करना सी, होर मुसीबतां खड़ियां कीतियां ने अगे। मस्कीन जी कहंदे ने मैनू चोट बड़ी पहुंची। कुछ सेवादार भी ऐसे नाल चलते सन मस्कीन जी दे, जिन्होंने मस्कीन जी दे नाल रखना भी, नाल थोड़ी सेवा कर लैनी ते उन्हां दे परिवार दा गुजारा चलदा सी। मस्कीन जी उन्होंने माइक सेवा भी करते सन, भेटा देनी, कपड़े बना के देने, नाल लैके चलना उन्होंने, बई ये सारे इतने नाल होंदे ने, तुसी इन्हां सारियां दी सेवा करो, तुहाडा भी काम चलदा रहे नाल नाल। पर उन्होंने भी जगह जगह ते किधरे गुरुद्वारे भी चोरी करनी, किधरे मस्कीन जी दी जेब विचों चोरी करनी, किधरे बदनीयती करके उन्होंने कुछ होर विवाद खड़े कर देने। मस्कीन साहब जी ने बड़ा इन्हों समझाने की कोशिश की। इन्होंने
कि किसी तरीके समझ जाने, पर जदों नहीं समझे तो फिर मजबूरन मस्कीन जी कहते ने मैनू हथ जोड़ने पे, भाई तू अपने रस्ते ते मैं अपने रस्ते ते। क्योंकि कईयां दा सुभाव ही ऐसा होंदा है, भावें रहिंदे वो दरिया दे विच ने, कमल दे फुल दे कोल रहिंदे ने, लेकिन कमल दा रस नहीं लैंदे हन। मैं 2-4 पंक्तियां सुना के ते समाप्ति कर देना, समा हो गया बहुत। गुरु नानक सच्चे पातशाह का एक शब्द है, दादर तू कभे ना जानस रे। दादर कहते ने मेंढक नूं, डड्डू नूं। पकस सिवाल बसस निर्मल जल, अमृत ना लखस रे। डड्डू पानी दे विच रहिंदा है, कमल दे फुल दे कोल रहिंदा है, पर कमल दे फुल दा रस नहीं लैंदा। गंदगी खांदा है, काई खांदा है, कीड़े मकोड़े खांदा है। तो मरदाने ने पुछ लिया सी, बाबा इस दे सुभाव नूं बदलिया नहीं जा सकदा? तो महाराज कहंदे ने भी नहीं मरदानिया, इहदे सुभाव नूं बदलना बड़ा मुश्किल है। बड़े सुंदर प्रमाण गुरु नानक सच्चे पातशाह ने दिते ने। सतगुरु कहंदे ने कि पंडित संग वसे जन मूर्ख, आगम सास सुने। अपना आप तू कबे ना छोड़स, स्वान पूछ जियो रे। जिवें कुत्ते दी पूछ नूं 12 साल तक नली दे विच पा के रखिया जाए ना, जिस दिन बाहर कड्डोगे फिर टेढ़ी दी टेढ़ी रहनी है, वो सीधी नहीं आउंदी है। वो गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे ने जिस तरह कुत्ते दी पूछ नहीं ना सीधी आउंदी, इसे तरह ही कोई बंदा भावें किसी पंडित कहते ने विद्वान नूं, किसी विद्वान की संगत दे विच भी रहे तां भी उसकी पूछ सीधी नहीं होंदी, उहदे सुभाव नूं नहीं बदलिया जा सकदा। भाई गुरदास जी ने भी प्रमाण दिते हैं, लकुटी अगन सेकत ही सोधी होए, स्वान पूछ पटंतर प्रगट मन तन से। ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ करना ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੇਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੇ, लेकिन कुत्ते की पूछ नूं सिद्धा नहीं किया जा सकता है। भाई गुरदास जी दे प्रमाण ने। गुरु तेग बहादुर साहब भी कहते हैं कि स्वान पूछ ज्यों पयो न सूदो, बहुत जतन मैं कीनो। हुण गुरु कह रहे हैं कि मैं बड़ा जतन किया, पर कईयां दा सुभाव ही ऐसा होंदा जिवें कुत्ते की पूछ कदी सिद्धी नहीं होंदी है। जिन्हां ने अपने उस्ताद कोलों इतनियां बख्शिशां लईयां, चलन की जाच सीखी, कदम कदम ते जिन्हां ने इतना साथ दिता, बच्चियां की तरह पालिया, उन्हां ने ही ऐसे अकिरत कणा वाले काम कीते, एहसान फरामोशी वाले काम कीते कि कोई होर होंदा ते जरूर कौड़े शब्द बोलदा हो। लेकिन मस्कीन साहब जी ने कभी भी उन्होंने वास्ते कोई कौड़ा शब्द नहीं बोलिया है। मस्कीन साहब जी कोई गल करते सन, कोई गल नहीं, अज नहीं तो कल आपे समझ जाएंगे। ये उन्हों दी निर्माणता सी मस्कीन साहब जी की। पर हैं ऐसे बहुत सारे अकिरत कण जिन्हों ने मस्कीन जी कोलों बहुत कुछ प्राप्त किया। शुकराना तक की करना सी, बल्कि होर कदम कदम ते रोड़े अटकाते रहे हैं। ऐसी महान शख्सियत ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी, जिन्हां दे नाल बहुत सारे रागी, प्रचारक, कथावाचक, विद्यार्थी रूप विच कथावाचक, बीबियां दे जत्थे, सेवादार, संगत विचों भी कई शरीर नाल चलदे सन। सारियां नूं नाल लै के चलना ये ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी के हिस्से विच ही आया। अज भी पंथ विच बहुत वड्डियां वड्डियां हस्तियां ने, पर कोई ऐसी संस्था जिहड़ी इस तरह की चलती फिरती संस्था होवे, एक बंदे नूं भी नाल लैके चलना औखा हो जाता अजकल तो मस्कीन साहब जी का पूरा परिवार नाल लैके चलते सन अपने धर्म भरावां दा। ऐसे महान गुरसिख ब्रह्म ज्ञानी आत्मा दी जीवन गाथा आप सरवण कर रहे हो। भुलां चुकां दी क्षमा, बाकी विचार कल आप जी दे सन्मुख रखण दी निमाणी कोशिश करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।